नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खानगी हॉस्पिटल्स और लैब्स में कोरोना टेस्ट और इलाज की कीमतों का तयन। 50,000 टेस्ट हुकूमत मुफ्त करेगी। कम्युनिटी स्प्रेड न होने वजीर सेहत का दावा। दस दिन के अंदर रैतु बंधु स्कीम की रकम किसानों को जारी करें। मौसम बरसात में 1,25,00,000 एकड़ अराजी पर काश्त होगी। वजीर आला का जायजा इजलास। रियासत में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा। टीआरएस के एक और रुकने असम्बली मुतासिर। हैदराबाद में बढ़ते केसेस बाद से तशवीश। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में शादीशुदा खातून की खुदकुशी। मजीद जहेज के लिए हरासा करने का अफराद खानदान ने लगाया इल्जाम। और पटनचेरू टोल प्लाजा के पास महकमे आबकारी संगारेड्डी की तलाशी मुहिम। 300 किलो गांजा जब्त, 6 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने खानगी लैब्स और हॉस्पिटल में कोरोना के टेस्ट और इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने इससे मुताल्लिक रहनुमाना खतूत जारी करते हुए बताया कि खानगी लैब्स में कोरोना वायरस का टेस्ट 2,200 रुपए में किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अगर कोई भी अलामात नहीं है तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जिनका टेस्ट मुस्बित होगा उन्हें यौमिया खानगी दवाखानों में आइसोलेशन के लिए 4,000 रुपए अदा करने पड़ेंगे। वेंटिलेटर्स के साथ यौमिया 9,000 रुपए का खर्च बर्दाश्त करना पड़ेगा। बगैर वेंटिलेटर ऑक्सीजन के साथ यौमिया 7,500 रुपए अदा करने पड़ेंगे। यौमिया 3,500 अफराद के नमूनों का मुआयना किया जाएगा। वजीर सेहत ने बताया कि खानगी हॉस्पिटल्स और लैब्स में किए जाने वाले टेस्ट की तफसीलात तेलंगाना वेब पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। हैदराबाद में जहां इजाफा केसेस हैं उन इलाकों में टेस्ट किए जाएंगे। खानगी हॉस्पिटल और लैब्स को टेस्ट और मरीजों की तफसीलात यौमिया फराहम करनी होगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने खानगी लैब्स और हॉस्पिटल्स को मुकर्ररा कीमत से जायद चार्जेस वसूल करने के खिलाफ इंतबा दिया है। उनका कहना था कि वजीर आला के सीआर यौमिया सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जो भी सरकारी दवाखानों में इलाज कराना चाहते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। खानगी दवाखानों के खिलाफ अगर अवाम के इस्तेहसाल की इत्तला मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ప్రైవేట్ ల్యాబులలో టెస్టులు ఏవైతే చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి ఆ పర్మిషన్ ఇస్తూ దానికి రేట్ని 2,200 రూపాయలు టెస్ట్ రేటుగా నిర్ణయించడం జరిగింది। ఈ టెస్ట్ సందర్భంగా తప్పకుండా హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు ఐఎల్ఐ కానీ సారీ కానీ జ్వరం కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్ కనుక ఉంటే తప్పకుండా హాస్పిటల్లో ఒక పూట పెట్టుకొని డాక్టర్ సూచన సలహా మేరకి ఆ టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది। ఆ టెస్ట్ నిర్వహించినప్పుడు దాని కాస్ట్ 2,200 రూపాయలుగా నిర్ణయించడం జరిగింది। ఏ సిమ్టమ్ లేకుండా ఊరికనే వచ్చి టెస్ట్ చేయమని చెప్పేటువంటి ఆ ప్రజల అభిప్రాయాన్ని కానీ దాని పరిగణలోకి తీసుకోవద్దని కూడా మేము వారికి స్పష్టంగా తెలియజేసుకున్నాం। సిమ్టమాటిక్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మాత్రమే తప్పకుండా టెస్టులు చేయాలని చెప్పి ఇవాళ మేము స్పష్టమైన గైడ్లైన్స్ ఇస్తా ఉన్నాం। రెండవది వాళ్ళు పాజిటివ్గా నిర్ధారించబడి వాళ్ళు కనుక ఏసిమ్టమాటిక్గా ఉంటే ఐసీఎంఆర్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా హోమ్ ఐసోలేషన్ ఏదైతే చెప్పిందో దాన్ని తప్పకుండా వాళ్ళు కూడా పాటించాలి। వాళ్ళ కనుక సిమ్టమ్స్ ఉండి హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ కనుక అవసరం ఉంటే అప్పుడు రొటీన్
ఐసోలేషన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి పేషెంట్కి రోజుకు 4,000 రూపాయలు పాజిటివ్ పేషెంట్గా గుర్తించబడి మామూలు ఐసోలేషన్లో ఉన్న పేషెంట్కి 4,000 రూపాయలు ఫర్ డే కలెక్ట్ చేయాలనేటువంటి నిబంధన. అదేవిధంగా వితౌట్ వెంటిలేటర్ ఐసీయూలో మామూలుగా డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి రోజుకు 7,500 రూపాయలు. అదేవిధంగా వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు 9,000 రూపాయలు ఫర్ డే. కొత్త మొత్తం కంట్రీలో చూసి వరల్డ్ వైడ్ చూసి ఎవరికి పెద్ద సిమ్టమ్ లేదు లేకపోతే చాలా మైల్డ్ సిమ్టమ్ ఉంది వాళ్ళకి మన ఇంట్లో అలౌ చేశాను. అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు టెల్ యూ దట్ టుడే వీ హ్యావ్ 650 సుమారు 650 పేషెంట్స్ ఆర్ అట్ హోమ్. దానికోసం ప్రత్యేకంగా ఒక కాల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నేను కూడా పర్సనల్గా కొంతమందితో మాట్లాడాను. వాళ్ళు చాలా మన డాక్టర్స్ వాళ్ళకి రోజు కనీసం 2 సార్లు కూడా ఫోన్ చేసి అడిగితే ఉన్నారు. ఎనీబడి నీడ్స్ ఎనీ సపోర్ట్ మీకు కొన్ని ఇప్పుడు సలహా ఇచ్చారు. అది కూడా ప్రభుత్వం తప్పకుండా ఆలోచన చేసి ఎట్లా చేయాలి దానికి కూడా చేయడానికి మనకి ఏ రకాల అభ్యంతరం లేదు. दूसरी तरफ वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद और उसके अतराफ के 4 अजला में हुकूमत की तरफ से 50,000 टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। अगर किसी में अलामतें नहीं पाई गई तो उनका टेस्ट नहीं किया जाएगा। कोरोना मुस्बित पाए जाने पर भी अगर अलामतें जाहिर नहीं हुई हैं तो उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा। रैपिड टेस्ट के बारे में हुकूमत ने कोई फैसला नहीं लिया है। हैदराबाद के किंगकोटी हॉस्पिटल में ये टेस्ट किए जाएंगे। 50,000 टेस्ट के बाद अगर केसेस में इजाफा होता है तो कंटेनमेंट इलाके बनाए जाएंगे। ICMR के कवायद के मुताबिक हुकूमत काम कर रही है। मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे हालात तेलंगाना में नहीं हैं। तेलंगाना में यौमिया 4,000 अफराद के टेस्ट की गुंजाइश है। बहुत जल्द एक खुसूसी मशीन खरीदी जाएगी। तेलंगाना रियासत में दीगर वजूहात की वजह से यौमिया 1,000 अफराद की मौत हो रही है। हैदराबाद के हर घर का सर्वे किया जाएगा। तेलंगाना रियासत में 11 लैब्स काम कर रहे हैं। खानगी तौर पर 2500 अफराद के टेस्ट करने की गुंजाइश है। अब तक तेलंगाना में 40,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 1 हफ्ते के अंदर रैतु बंधु स्कीम की रकम किसानों को जारी कर दी जाए। प्रगति भवन में आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए KCR ने मसरत का इजहार किया कि हुकूमत के कहने के मुताबिक किसान काश्त कर रहे हैं। इससे किसानों को मुनाफा बख्श बनाने में काफी मदद मिल रही है और ये मुल्क में मिसाली तरीक़ेकार होगा। इस मौके पर ओहदेदारों ने बताया कि अब तक के हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 11 लाख एकड़ अराजी पर तुखुमरेजी का अमल मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत के कहने के मुताबिक मौसम बरसात में 71,76,778 एकड़ अराजी पर धान की काश होगी। इसी तरह तुवर 12,31,000 एकड़ पर, सोयाबीन 4,68,000 एकड़ पर, कपास 60,16,000, लाल जवार 1,53,000 एकड़ पर काश्त की जाएगी। जुमला 1,25,45,000 एकड़ पर काश्त होगी। वजीर आला ने कहा कि किसी ताखीर के बगैर किसानों को रकम जारी कर दी जाए। हर साल फी एकड़ पर हुकूमत की तरफ से 10,000 रुपए दिए जाते हैं। मौसम बरसात के लिए दी जाने वाली 5,000 रुपए की रकम किसानों के बैंक अकाउंट में जमा कराई जाएगी। वजीर आला ने कहा कि अब तक 5,500 करोड़ रुपए महकमे ज़राअत को मुंतकिल किए जा चुके हैं। 1 हफ्ते के अंदर बाकी 1,500 करोड़ रुपए भी मुंतकिल किए जाएंगे। मौसम बरसात से इसकी पहल हो चुकी है। रबी मौसम में भी इसी तरीक़ेकार को अपनाने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाए। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से सियासी कायदीन के मुतासिर होने का सिलसिला जारी है। पीर को हुक्मरान TRS के निजामाबाद अर्बन असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बी गणेश गुप्ता में कोरोना मुस्बित पाया गया है। इससे पहले निजामाबाद रूरल के रुकन असम्बली बाजी रेड्डी कवर्धन और जंगांव के रुकन असम्बली मुत्ती रेड्डी यादगी रेड्डी भी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। निजामाबाद में 2 अरकान असम्बली के कोविड-19 से मुतासिर होने पर बेचैनी और सनसनी देखी जा रही है। वजीर सेहत राजेंद्र के OSD भी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। रियासत में तेजी के साथ कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों के दौरान 237 केसेस दर्ज हुए थे। अजीमतर हैदराबाद हुदूद के 195 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
रियासत में इतवार की रात 3 अमवात की तस्दीक की गई थी। अब तक जुमला अमवात 185 तक पहुंच गई हैं। 23 सहाफियों के नमूने भी मुस्बित आए हैं। जुमला केसेस की तादाद 4,974 तक पहुंच गई है। बढ़ते केसेस से अवाम में तशवीश देखी जा रही है। तेलंगाना सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जगन और केसीआर मिलकर कृष्णा नदी के पानी को आंध्रा मुंतकिल करने की साजिश कर रहे हैं। गांधी भवन में पोतिरेड्डीपाडु प्रोजेक्ट की तोसी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पोतिरेड्डीपाडु प्रोजेक्ट की जद्दोजहद काफी पुरानी है। केसीआर ने भी इस प्रोजेक्ट की मुखालिफत में जद्दोजहद की थी, लेकिन अब जगन के साथ मिलकर पानी को आंध्रा मुंतकिल करने में पूरा ताउन कर रहे हैं। 6 माह कबल ही जगन के साथ एक खुफिया माहिदा करते हुए पोतिरेड्डीपाडु प्रोजेक्ट की तोसी के लिए तयखून दिया था, इसलिए वो अब उसकी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगरचे के पोतिरेड्डीपाडु प्रोजेक्ट की तोसी की गई तो नागार्जुन सागर सूख जाएगा। इसकी तोसी का काम जब तक नहीं रोका गया, कांग्रेस पार्टी मुसलसल जिद्दोजहद करती रहेगी। इजलास में नागम जनार्दन रेड्डी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया। तेलंगाना बीजेपी की तरफ से बरकी बिल्स में इजाफे के खिलाफ रियासतगीर एहतजाजी प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। मुख्तलिफ मकामात पर बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार किया गया। सदर बीजेपी को पार्टी दफ्तर के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो विद्युत सुधा का घेराव करने के लिए जा रहे थे। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी बी संजय ने कहा कि हुकूमत ने खजाने भरने के लिए बरकी प्लस में इजाफा किया है। स्लैब के नाम पर केसीआर अवाम पर बोझ डाल रहे हैं। केसीआर सूद के कारोबारी की तरह पेश आ रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने मरकजी हुकूमत ने करोड़ों रुपए जारी किए, लेकिन टीआरएस हुकूमत ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। अपोजिशन के पुरअमन एहतजाज को दबाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बरकी बिल्स के बारे में हुकूमत जब तक पीछे नहीं हटेगी, उस वक्त तक बीजेपी खामोश नहीं बैठेगी। उन्होंने मुतालबा किया कि बिल्स की अदायगी हुकूमत ही बर्दाश्त करे। 300 करोड़ रुपए अवाम से वसूल करने का हुकूमत मंसूबा रखती है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर लोकेश कुमार ने बताया कि छिट में हरितहारम प्रोग्राम के तहत 50 लाख पौधे लगाए जाने का निशाना रखा गया है। इस प्रोग्राम के तहत सोराराम, मादनगुड़ा और नादरगुल के अलावा अर्बन फॉरेस्ट पार्क को तौर पर तरक्की देने का भी फैसला किया गया। इस प्रोग्राम के तहत एवेन्यू प्लांटेशन, कॉलोनी और इंस्टीट्यूशन प्लांटेशन किया जाएगा। शहर के तमाम जोन्स और सर्कल्स के खाली इलाकों में शजरकारी की जाएगी। जेएचएमसी के खाली इलाकों को ट्री पार्क के तौर पर तरक्की दी जाएगी। वॉकिंग ट्रैक भी कायम किए जाएंगे। अहम शाहराहों और मरबूत रास्तों पर भी शजरकारी की जाएगी। फ्लाईओवर्स के नीचे के खाली इलाकों में भी शजरकारी की जाएगी। तेलंगाना माइनॉरिटीज कमीशन ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए अवाम को मशवरा दिया कि वो अपनी शिकायतों को ईमेल के जरिए कमीशन को पहुंचाएं। जितना मुमकिन हो शख्सी तौर पर कमीशन के दफ्तर आने से गुरेज करें। कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद कमरुद्दीन ने कहा कि ऐसे वक्त जबकि लॉकडाउन खुल गया है, कोरोना वायरस के मुतासिर की तादाद में इजाफा हो रहा है। अवाम अपने तौर पर एहतियात करें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। अक़लियतों से अगर कहीं नाइंसाफी या हक तलफी हो रही है तो उसकी शिकायत ईमेल के जरिए कमीशन से करें। कमीशन का ईमेल DE secretary@tsmc@gmail.com बताया गया है। बड़ों से बच्चों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सोशल डिस्टेंस करिए और बाहर मत, गैर ज़रूरी बाहर मत आइए, क्योंकि आप अच्छे रहे तो आपका खानदान अच्छा रहता। इस वास्ते मैं खास रूप से हमारे हानून सीएम फरमाए साहब, हमारे हानून सीएम हमेशा फरमा रहे हैं आप यानी कि बाहर काम है तो अगर ज़रूर है तो मत निकलीजिए, क्योंकि ख़ास तौर से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे हानून सीएम फरमाए साहब। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरे के रिनवसपुरा डिवीजन में वाक़ फरीद कॉलोनी में नाले के तोसी के कामों का बलदिया के आला अहदेदारों ने मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के साथ दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि जू से पानी की अखराज होकर नाले में जमा हो रहा और इससे मुकामी मकीनों को मुश्किलात पेश आ रही थी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुकामी मकीनों ने नुमाइंदगी की थी। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर ही आला अहदेदारों को इलाके का दौरा कराया गया है। उनका कहना था कि बैरिस्टर ओवैसी ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि नाले के तोसी कामों में
मुकामी मकीनों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के मजलिस इंचार्ज मिर्जा रहमत बेकादरी ने गोशा महल के झिर्रा, सरू नगर, नटराज नगर, मुजाहिद नगर, गंगा बौली और टप्पा चबूतरा का तफसीली दौरा करते हुए नाले का जायजा लिया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के सेंट्रल जोन के जोनल कमिश्नर प्रवीणा और डिप्टी कमिश्नर एबिट्स और दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रहमत बेग ने नाले के कामों के सिलसिले में बलदी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई। दत्तात्रेय नगर के कॉरपोरेटर यूसुफ और मजलिस के सुदूर मोतमदीन और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। जगतगीर गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में बेटे ने बाप पर कातिलाना हमला किया है। तफसीलात के मुताबिक 50 साला अंजैया मुद्दिराज अपने 25 साला फर्जंद प्रवीण के साथ मैनोशी कर रहा था। इस दौरान दोनों में बहस व तकरार हुई और फिर प्रवीण ने मोहलिक हथियार से अपने वालिद पर हमला कर दिया। इस वाक़े में अंजैया मुद्दिराज जख्मी हो गया है। उसे इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। जगतगीर गुट्टा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की टीम ने तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलव्विस 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 7 जून को मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में मयूर और विकास ने 3 तोले की तिलाई चेन छीनकर फरारी अख्तियार की थी। पुलिस ने केस दर्ज होने पर तहकीकात करते हुए सारिकों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3 तोले की तिलाई चेन, 1 एक्टिवा स्कूटर, 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। मजीद कार्रवाई के लिए सारिकों को मुशीराबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद के बाबानगर सी ब्लॉक में 30 साला शादीशुदा खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया करीमुन्निसा के भाई ने बताया कि शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की तरफ से मजीद जहेज के लिए उनकी बहन को मुसलसल हरासा किया जा रहा था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। महकमे आबकारी संगारेड्डी की टीम ने 300 किलो गांजा मुंतकिल करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर प्रोबेशन एंड एक्साइज के एवी शास्त्री ने मीडिया को बताया कि असिस्टेंट प्रोहिबिशन एंड एक्साइज टी गायत्री की टीम ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पटनचेरू टोल प्लाजा के पास तलाशी मुहिम अंजाम दी और गांजे को जब्त किया। मुलजमीन के मोरीन, एम अंजनाइलू, एम लिंगम, बी रविंदर, मलचम्मा, विनायक और जग्गू 3 कारों में ही कार 100 किलो गांजा मुंतकिल कर रहे थे। वह आबकारी पुलिस के हाथों पकड़े गए। 5 मुलजमीन का ताल्लुक संगारेड्डी से। उनके 2 साथी भी गांजा मुंतकिल करने के इस रैकेट में मुलव्विस थे। इन्हें आबकारी पुलिस ने जल्द गिरफ्तार करने का अज़्म किया है। उन्होंने बताया कि सर्कल इंस्पेक्टर मोहन कुमार, सब इंस्पेक्टर विश्वनाथ, हेड कांस्टेबल मोहम्मद अलीम और दूसरे कांस्टेबल्स को उनकी गैर मामूली कारकर्दगी के लिए इनामात से नवाजा जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि जब्तशुदा गांजे की मालियत 80 लाख रुपए बताई जाती है। बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी की कोशिश करने वाले 2 नौजवानों को मुकाम वाम ने पकड़कर पिटाई कर दी, फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुतासरा लड़की ने बताया कि रकम देने के बहाने उससे सुनसान जगह पर ले जाया गया और उसके साथ ज्यादती की कोशिश की गई। चीख पुकार पर मुकामी लोग जमा हो गए और मुकामी नौजवानों ने दोनों मुलजमीन को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी। पुलिस ने दोनों मुलजमीन को तहवील में ले लिया है। मुतासरा लड़की के अफराद खानदान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। खानगी हॉस्पिटल्स और लैब्स में कोरोना टेस्ट और इलाज की कीमतों का तयन। 50,000 टेस्ट हुकूमत मुफ्त करेगी। कम्युनिटी स्प्रेड न होने वजीर सेहत का दावा। दस दिन के अंदर रैतु बंधु स्कीम की रकम के सालों को जारी करे। मौसम बरसात में 1 करोड़ 25 लाख एकड़ अराजी पर काश्त होगी। वजीर आला का जायजा इजलास।
रियासत में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा, टीआरएस के एक और रुकन असम्बली मुतासिर। हैदराबाद में बढ़ते केसेस बासे तशवीश। कंचनबाग में शादीशुदा खातून की खुदकुशी, मजीद जहेज के लिए हरासा करने का अफराद खानदान ने लगाया इल्जाम। और पटनचेरू टोल प्लाजा के पास महकमे आबकारी संगारेड्डी की तलाशी मुहिम, 300 किलो गांजा जब्त, 6 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।